प्रेज लॉर्ड सबको, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। सबको हैप्पी क्रिसमस। क्रिसमस कल हो गया, लेकिन विश यू द सेम। हैप्पी क्रिसमस। yeah, we are still in हैप्पी क्रिसमस, सेम टू यू। Thank you. दयानंद ब्रदर है, तो प्रार्थना करके ब्रदर शुरू। हाँ, एक मिनट। यस। थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए प्रभु, आज के संध्या के समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के सुंदर समय के लिए प्रभु हमें एकत्रित किया भाई जोश के जरिए, हमारे जो ऐप के जरिए प्रभु हम प्रार्थना में एकत्रित किए, इसलिए थैंक यू, धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा जी, प्रार्थना मीटिंग है पिता परमेश्वर, इस मीटिंग को आगे बढ़ाइए और वचनों के द्वारा हमें समझने के लिए ज्ञान बुद्धि से भर दीजिए, सभी को लिए भर दीजिए और उनको आशीष करना प्रभु। भाई जोश के लिए भी आशीष करना, उनका वचन हमें समझने के लिए हमारे मन को, आंखें को खोल दे मेरे पिता परमेश्वर, और उनको ऐसे ही आगे उन्नति दे, क्योंकि हम उनके वचनों के जरा समझ सके और आगे आत्मिक रीति में चलने के लिए सहायता कर मेरे खुदा। हमें सभी के लिए आशीष करना और हमारे कलीसिया को आगे बढ़ाना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु आज की संगति के लिए, और तू इस संगति के आशीष और फलदायक बने, केवल सुन के बैठने वाला नहीं, आगे और कार्य करने के लिए उनके मनों को तैयार कर मेरे खुदा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, इस छोटी सी कलीसिया को तूने आज हमारे जो मैं आपके इधर जोड़ा है, और कलीसिया को आशीष करना, सभी भाई बहनों को आशीष करना, उनके जीवन में तो कार्य कर, वो समझ के वचनों को समझ के वो कार्य में करने के लिए सहायता कर। धन्यवाद प्रभु आज की मीटिंग के लिए। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। First Corinthians chapter 1 verse 18. First Corinthians chapter 1 verse 18. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. So in this verse, I would like to take the song, The Old Rugged Cross. For the people, for the Gentiles who do not know, they just understand that it's a cross and Jesus has died. But for us, it is a message. It is a message and it's a display of his love, so that we understand it. And for us, it is the power of God. So for us, it is very important, the cross and what has been done on that cross. So, and we should cherish it and always hold on to it. So believing that, we will sing the song, The Old Rugged Cross. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross, where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left his glory above to bear it to dark Calvary. So I'll cherish the old rugged cross
till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. In that old rugged cross, stained with blood so divine, a wondrous beauty I see. For 'twas on that old cross Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true, its shame and reproach gladly bear. Then he'll call me someday to my home far away, where his glory forever I'll share. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. And I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. The next song, I have taken a Marathi song this time. So it is, the name of the song is Ishwarachi Daya Kiti. So it speaks about God's mercy, which abounds and for which there is no measure. And it says about how lovingly God tells us to come and cast all his burdens upon himself, all our burdens upon himself, and he will fight the battle for us. And he is always there for us. So believing in that, I am not very sure, but if everyone knows the song, but it's a nice opportunity to learn a new song in Marathi. ईश्वराची दया किती थांगती चालागेना, न्यायी तरी त्याची प्रीती सिंधू एवढी जाना. देव बोले प्रेमे फार, टाकी माझ्यावरी भार, टाकी माझ्यावरी भार. सर्व कष्टी सर्व दुखी ओझियांनी कन्हती, ऐकू जाते दिव्य लोकी प्रीती तेथे वसती. देव बोले प्रेमे फार, टाकी माझ्यावरी भार, टाकी माझ्यावरी भार. देव खरा ममताळू अंत काही लागेना, केवढा तो कनवाळू मानसांना कळेना. देव बोले प्रेमे फार, टाकी माझ्यावरी
की माझ्यावरी भार, ती खरी अगाध प्रीती, ती तयाच्या अंतरी, तोच म्हणे नाही भीती, मी दयासनावरी. देव बोले प्रेमे फार, टाकी माझ्यावरी भार, टाकी माझ्यावरी भार. या उदासी भ्रांती सोडा, त्याची वाणी ऐकुनी, निश्चयाला ती मैत्री जोडा, पूर्ण भाव ठेवूनी. देव बोले प्रेमे फार, टाकी माझ्यावरी भार, टाकी माझ्यावरी भार. बापावरी टेकताना, लेकरांना सुख फार, येशूपाशी राहताना, हर्ष वाटतो अपार. देव बोले प्रेमे फार, टाकी माझ्यावरी भार, टाकी माझ्यावरी भार. ती खरी अगाध प्रीती, ती तयाच्या अंतरी, तोच म्हणे नाही भीती, मी दयासनावरी. देव बोले प्रेमे फार, टाकी माझ्यावरी भार, टाकी माझ्यावरी भार, टाकी माझ्यावरी भार. As is December month and we are taking carols every Bible study. So the carol for today is Silent Night, Holy Night. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds quake at the sight, glory stream from heaven afar, heavenly hosts sing Alleluia. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Silent night, holy night, Son of God, love's pure light, radiant beams from thy holy face, with the dawn of redeeming grace,
Jesus, Lord, at thy birth. Jesus, Lord, at thy birth. Dear Heavenly Father, Lord, we thank you, Father. We thank you, O Lord, for this time, O Father. We thank you, O Lord, for the time of worship, O Father, that you gave us all, O Father, to come, O Lord, and glorify you, Father God. Yes, Lord, because you are worthy of each our prayers, each our worship, O Father, and each and every thanksgiving, O Lord, that we come, O Lord, when we enter into your presence, O Father. We thank you, O Lord, for blessing us, O Lord, throughout this year, O Father God, and you have sustained us, O Father God, that you have kept us under your wings, O Lord, and by your grace and your mercy, O Lord, we have come to the end of this year, O Father God. Yes, Lord, it is only your goodness, O Father God, and we thank you, O Lord. We thank you for everything that you are doing in our life, O Father God. Help us to remember, acknowledge you, and walk in your ways, O Lord, and do what is pleasing in your sight, O Father. Lord, we also pray, O Father God, for the time ahead, O Father God, that you bless Joe's uncle, O Father. The word, O Lord, that will be shared to us, O Father God, you help it to fall on good ground, O Father God, and that it will multiply, O Father God, for your glory and bear good fruits, O Father God. You prepare each and everyone's heart, O Father God, to receive your word, O Father God. And Lord, you open up our spiritual eyes, O Father God, and our ears also, Lord. We commit this time into your hand, O Father. We ask this prayer in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. 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 Thank you, Lorna, for leading us in worship. And I think regularly we should sing different language songs, at least one. So those who know other languages, we have many language people here. So please take the initiative to sing or teach us at least one another language song. हम अलग अलग भाषा के गाना गाने चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है. So हमारे बीच में मराठी भाषा वाले हैं, तमिल वाले हैं, सिंधी है, कोंकणी है, मलयालम है, गुजराती है, और क्या चाहिए? ओके, ये सब मिक्स करेंगे तो स्वर्गीय भाषा हो गया. ओके, सो जैसा मैं बात कर रहा हूँ, किसी ने ऑलरेडी बोल दिया है अगले बार कोंकणी गाना होगा, तो गुड जॉब, ऐसे आगे बढ़ो. मैं विश्वास करता हूँ सभी को अपनी अपनी भाषा में कुछ प्रभु के गाने आते होंगे जरूर. ओके, और एक किसी ने इनिशिएटिव लिया है. गुड, वी हैव 2 volunteers who have come ahead. Praise God. Okay, we are going to have a wonderful time in the coming weeks also. प्रभु को धन्यवाद आज का दिन के लिए. वचन शुरू करने के पहले मैं जस्ट एक सूचना कहना चाहूँगा. आने वाला जो ट्यूसडे है, ट्यूसडे का जो बाइबल स्टडी, हम सब जितने हो सकते हैं सभी लोग ज्वाइन कीजिए प्लीज, क्योंकि साल का आखिरी हफ्ता है. तो हम ऐसे सोच रहे कि ट्यूसडे का बाइबल स्टडी का दिन प्रेरितों का पुस्तक के बदले हम धन्यवाद का एक विषय रखेंगे. हम सब क्योंकि साल के अंत में है, प्रभु को हम धन्यवाद का भेंट चढ़ाएंगे, धन्यवाद का गीत गाएंगे, गवाही देंगे, और धन्यवाद का वचन भी हम सुनेंगे प्रभु से. ओके, सो कृपया करके हम सब ट्यूसडे को ज्वाइन हो जाएंगे. और मैं चाहता हूं कि सभी जो भी बाइबल स्टडी में है, सभी आप लोग सब कुछ शब्दों में गवाही दीजिए. ओके, सबको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ. ज्यादा समय नहीं, केवल 1 मिनट का समय दिया जाएगा, 1 मिनट से कम. कुछ शब्दों में
मैं विश्वास करता हूँ हम सबके जीवन में प्रभु ने अद्भुत कार्य किया है, प्रभु आज तक हमें चलाया, तो क्यों ना हम प्रभु को ऊंचा उठाए गवाही के द्वारा। ओके, तो सभी व्यक्ति, बच्चे भी एक शब्द बोल सकते, बच्चे, जवान और हम सब बड़े, सब लोग ओके एक एक शब्द में गवाही देंगे। तो भरपूर समय होगा, लेकिन 1 मिनट एक व्यक्ति के लिए। ओके, तो अगर 15 या 20 व्यक्ति है तो 20 मिनट गवाही के लिए दिया जाएगा, नो प्रॉब्लम, वी हैव इनफ टाइम। ओके, आइए हम वचन में जाएंगे। आज का विषय निर्गमन का पुस्तक नहीं है, आज का विषय यीशु का जन्म का बारे में है। ओके, सच्चा क्रिसमस क्या है, व्हाट इज ट्रू क्रिसमस, ये हम सब जानते हैं, फिर भी इन अंतिम दिनों में जब शैतान हर क्षेत्र में हर विषय को लेकर कुछ ना कुछ एक नया कुछ गलत अर्थ लेकर आता है, गलत एक अनुवाद लेकर आता है अलग अलग विषयों में। क्रिसमस एक ऐसा विषय है जहाँ पर सदियों से शैतान मैं कहूँगा काबिल हुआ, मसीह लोगों में भी, दुनिया में तो है ही काबिल वो, मसीह लोगों में भी एक क्रिसमस जब हमारे मन में हम सोचते हैं क्रिसमस, अचानक कुछ एक ऐसा चित्र या शब्द आ सकता है जो वचन के अनुसार नहीं है। ओके, जैसे दुनिया वालों के लिए क्रिसमस मतलब तुरंत उन लोग सांता क्लॉस को सोचते हैं। ओके, सांता क्लॉस आएगा, या क्रिसमस मतलब वो लाल टोपी पहनना, क्रिसमस मतलब जो क्रिसमस ट्री है उसको सजाना। ओके, तो सजावट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब सजा सकते हैं क्योंकि हम खुश है यीशु पैदा हुआ, आमीन। लेकिन यीशु इस क्रिसमस का मुख्य केंद्र है, ये हमें कभी भूलना नहीं है। और दुनिया लगातार हमारे मनों में उस मुख्य केंद्र को हटाकर बहुत कुछ और चीजों की ओर हमारे ध्यान को लेकर जाएगा। ओके, तो जो मुख्य केंद्र यीशु मसीह है उससे हटकर हमारा ध्यान उन चीजों पर ज्यादा जा सकता है। ओके, तो उसमें हमें थोड़ा सावधान रहना है, हमारे मनों को लगातार हमें नया करना बहुत जरूरी है। वचन का क्रिसमस क्या है, वचन में यीशु का जन्म के समय पर क्या था वही आज भी होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। ओके, कुछ भी घटना नहीं चाहिए, कुछ भी हम जोड़ना नहीं चाहिए, इसका सावधानी हमें बरतना होगा। ओके, और उसी में आनंद है, ऐसा नहीं कि वचन का जो क्रिसमस है वो बोरिंग है, ऐसा नहीं है। ओके, बिल्कुल बोरिंग नहीं है। जो यीशु मसीह का उनका जन्म का असली अर्थ जिनको समझ में आया है वो आनंद का एक कारण है, इसलिए हम सजाते हैं। ओके, इसलिए हम हमारे घरों को सजाते हैं, या हम आनंद मनाते हैं, या हम कैरल गाते हैं, या दूसरों को यीशु के जन्म के बारे में बोलते हैं। ओके, मुझे कई बार चिढ़ होता है जब यीशु को हटाकर एक बूढ़ा सा एक व्यक्ति वो जगह ले लेता है जिसका नाम सांता क्लॉस है। ओके, सो हम वचन में जाएंगे, वचन में क्या है यीशु का जन्म को संबंधित। आज का ये विषय सच्चा क्रिसमस क्या है, उसमें मैं 5 भविष्यवाणियों को आपके सामने लाना चाहता हूं जो यीशु के जन्म
के समय पर पूरा हुआ। ओके, 5 भविष्यवाणी पूरा हुआ। ओके, दूसरा, यीशु के जन्म के संबंधित ओके हमें मसीह लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए उस जन्म के समय पर, यीशु के जन्म के समय पर जो घटनाएं घटी, उन घटनाओं के द्वारा बहुत कुछ हमें सीखने के लिए है। वो क्या क्या है वो भी हम देखेंगे। आइए मत्ती का पुस्तक निकालेंगे। मत्ती का पुस्तक, उसका पहला अध्याय और 22 वाक्य पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 22। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। आई एम सॉरी, उसके पहले लूका का पुस्तक पहला अध्याय उसका 26 वाक्य पढ़ो। लूक चैप्टर 1 वर्स 26। लूका पहला अध्याय 26 वाक्य। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में पढ़ते जाओ। एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। हाँ, आगे। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह इस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, ए मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। बस। तो 26 वाक्य कहता है कि गैब्रियल स्वर्गदूत मरियम के पास आकर एक बहुत बड़ा, मेरे भाषा में मैं कहूंगा बहुत बड़ा एक धमाका किया। ये एक मरियम के जीवन में एक केवल आश्चर्य करने वाली बात नहीं, परंतु एक बहुत डरावना बात था। भयभीत करने वाली बात थी। हमारे हिसाब से हम जब पढ़ते हैं हमको लगेगा ये खुशखबरी स्वर्गदूत ने मरियम से कहा। लेकिन मरियम के लिए ये कैसा खबर था, ये हमें मरियम के जगह में खड़े होकर हमें सोचना बहुत जरूरी है। आप अपने आप को मरियम के जगह में रखो। ऐसा सोचो कि आपका किसी के साथ सगाई हुआ है, विवाह हुआ नहीं है, शारीरिक संबंध हुआ नहीं है, और अचानक स्वर्गदूत आकर या कोई व्यक्ति आकर आपसे कहता है कि आप गर्भवती है। या अचानक डॉक्टर आपको कहता है that you are found with child. I like that expression in English. I think it's in Matthew. मत्ती पहला अध्याय में, एक मिनट, हाँ, पहला अध्याय का 18 वाक्य पढ़िए। मत्ती पहला अध्याय 18 वाक्य। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। उनके दोनों के इकट्ठा होने के पहले, दोनों शारीरिक संबंध करने के पहले वो गर्भवती पाई गई। इन शब्दों पे गौर कीजिए। In English it says, before they came together, she was found with child.
Okay, so if it was a normal process, no one would say that, hey, she is found with child. Okay, a good news is usually shared, you know, a married couple among us, how would they share the good news? Okay, hey, I have a good news. Okay, I'm pregnant. So I am found with child. That is a surprise for the person herself who is with child. Okay, मरियम गर्भवती पाई गई. ओके, तो वो समय के पहले पाई गई है. ओके, एक आश्चर्य वाली बात है, एक आनंद वाली बात नहीं है. मरियम के जगह पर होकर हमें समझना बहुत जरूरी है. केवल उनका मंगनी हुआ था कि वो गर्भवती पाई गई. ओके, सो ये मरियम के लिए एक भयभीत करने वाली बात थी. ओके, जो हमने 29 वाक्य में पढ़ा था. लूका का पहला अध्याय, उसका 29 वाक्य पढ़िए. लूक 1:29. लूका 1:29. वह उस वचन से बहुत घबरा गई हाँ, और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है. ये किस प्रकार का अभिवादन है. ओके, सो हम क्रिसमस के समय पर हम सब जब आनंद मनाते हैं ना, जिस व्यक्ति के बारे में हम आनंद मना रहे, उस व्यक्ति की मां घबराहट में थी इस समय पर. ओके, ये हमें समझना बहुत जरूरी है. घबराहट था. हम सबके घरों में आनंद है आज, लेकिन किसी के उस व्यक्ति के घर में, ओके, नाजरत में घबराहट से शुरू हुआ ये खबर. ओके, घबराहट क्यों? क्योंकि उनका केवल मंगनी हुआ था. ओके, और स्वर्गदूत ने मरियम से क्या कहा? 30 वाक्य 30. स्वर्गदूत ने उससे कहा, ए मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है. भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है. ओके, तो ये क्रिसमस में परमेश्वर का संदेश हमारे लिए ये है. कोई विषय है, भयभीत वाली विषय है, परमेश्वर हमें आश्वासन देता है, भयभीत न हो. परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है. His favor is upon us. Let us not be afraid. Okay, there are many things that bring fear in us. Okay, let us not be afraid. पहला संदेश. ओके, और फिर क्यों भयभीत ना हो? क्योंकि 31 वाक्य पढ़िए, 31. तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना. हाँ, तू उसका नाम यीशु रखना. तो इस खबर से और मरियम गर्भवती होने से, ओके, इस भयभीत अवस्था में मरियम के लिए एक विपरीत परिस्थिति था. एक विपरीत परिस्थिति था, एक भयभीत परिस्थिति था. विपरीत क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि मरियम का केवल मंगनी था. मरियम के मन में क्या चलता होगा, जरा सोचकर देखिए. समाज में मैं किसको मुंह दिखाऊंगी? लोग क्या सोचेंगे? मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ है, और जब लोग मुझे देखेंगे कि मैं पेट में हूं, ओके, ये विवाह के पहले इसको बच्चा कैसे हुआ? जरूर इसने किसी के साथ गलत संबंध रखा है. ओके, ये सब भयभीत होने का कारण है मरियम. ओके, तो स्वर्गदूत का मरियम से मुलाकात करना ये एक सामाजिक लोगों के सामने नहीं था. ये बंद कमरे में हो रहा है. सो इट इज अ प्राइवेट a private meeting of angel Gabriel with Mary. It is not a public meeting.
where everybody knows that, okay, Mary has not done anything wrong. It is because the angel Gabriel said. So everybody knows. So she doesn't have to explain to people. Okay, but that was not like that. This message from heaven which Gabriel brought was between the angel and Mary. Not even Joseph knew at that time what angel spoke to Mary. Okay, so there is every chance for the entire community to misunderstand Mary. Her image, her testimony is at risk. मरियम का गवाही, मरियम का छवि, ओके, उनका चरित्र दाव पर लगा हुआ था। समाज को क्या उत्तर देगी? क्योंकि गैब्रियल स्वर्गदूत केवल मरियम से मिली थी, समाज को नहीं पता बाहर। ओके, और समाज छोड़ो, यूसुफ को भी क्या बताऊंगी मैं, ये मरियम के मन में चलता होगा। ओके, और ये ऐसी लड़की है जो अपने आप को कुंवारी रखी थी। ओके, अपने आप को कुंवारी रखना बहुत मुश्किल है, केवल आज के जमाने में नहीं, उस जमाने में भी। ओके, अपने आप को पवित्र रखना विवाह के दिन तक ये बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन मरियम धर्मी थी और परमेश्वर का भय मानने वाले एक लड़की थी, और वो अपने आप को कुंवारी रखी थी। साधारण उस समय के युवक जवान लोग अपने आप को गलत संबंधों में जैसे डालते हैं, वैसा मरियम परमेश्वर का भय रखते हुए मरियम गलत संबंधों में नहीं रखा। इतना कुछ अपने आप को सेल्फ कंट्रोल, व्हाट डू यू कॉल फॉर सेल्फ कंट्रोल? स्वयं पर नियंत्रण। हाँ, स्वयं पर नियंत्रण रख के विजयवंत होकर एक पवित्र जीवन जीने के बावजूद जब अंत में ऐसा एक खबर सुनता है, अब आप समझे क्यों वो भयभीत हो गई। ओके, देयर इज एवरी रीजन फॉर हर टू बी अफ्रेड। ओके, लेकिन इन सब विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर का एक भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। ओके, वो है मत्ती का पहला अध्याय 22 वाक्य पढ़िए, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 22। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। ये सब इसलिए हुआ, क्या सब इसलिए हुआ? मरियम का जो लोगों के मन में एक गलत फहमी, यूसुफ के मन में भी गलत फहमी हुआ, क्योंकि जैसे यूसुफ को पता चला कि मरियम गर्भवती है, वचन कहता है कि यूसुफ उसको त्यागना चाहा। ओके, परंतु परमेश्वर यूसुफ से बात किया सपने के द्वारा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, तब जाकर यूसुफ ने मरियम को अपनाया। तो ये सब मरियम को सामना करना पड़ा। ओके, क्यों? ताकि परमेश्वर का भविष्यवाणी पूरा हो। कौन सा है वो भविष्यवाणी? 23 वाक्य पढ़िए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो ये भविष्यवाणी यशायाह के पुस्तक में यशायाह ने किया था बहुत साल पहले, वो अब पूरा हो रहा है। ओके, और पूरा कैसे हो रहा है? एक निर्दोष, धर्मी, पवित्र कुंवारी, ओके, उसका जीवन अस्त व्यस्त होते होते पूरा हो रहा है। ओके, आपका जीवन में तूफान है, आपके जीवन में गड़बड़ी है, नाव डूबने पर है, याद रखो परमेश्वर का भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। ओके, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में, देखो हम सब चाहते हैं प्रभु आपका इच्छा पूरा होने दो, लेकिन प्रभु का इच्छा कई बार हमारे जीवन में ऐसा पूरा होता है, हम
तकलीफ में होकर गुजरते गुजरते पूरा होता है। हमें एक अच्छे परिस्थिति में बैठकर नहीं। ओके, सो if God's will has to be fulfilled in our life, we have to be ready to put ourselves in risk. Okay, people may misunderstand us, people may say all kinds of bad things about us. Be ready for that, because God's will is being fulfilled in our life. Okay, may God give us grace for that. प्रभु हम सबको अनुग्रह दे। पहला भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। आगे जब यूसुफ को पता चला कि मरियम गर्भवती है, यूसुफ का प्रतिक्रिया क्या था? 19 वाक्य पढ़िए, मत्ती 1:19। अंत उसके प्रति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। तो यूसुफ को जब पता चला कि मरियम जिसके साथ उसका मंगनी हुआ था वो गर्भवती है, तो यूसुफ उसको त्यागना चाहा। ओके, क्यों त्यागना चाहा? जाहिर की बात है। ओके, वो त्यागना चाहा क्योंकि यूसुफ को भी लगा कि ये कोई शारीरिक संबंध से ही होता है। हम भी उसके जगह में होता तो हम ऐसे ही सोचते, शारीरिक संबंध से ही एक बच्चा होता है, और कैसे होगा? कभी संसार में ऐसा कभी हुआ नहीं है। पवित्र आत्मा के द्वारा उसके पहले नहीं हुआ है, ना ही उसके बाद हुआ है। ओके, तो यूसुफ त्यागना चाहा, इसीलिए नहीं कि यूसुफ एक खराब व्यक्ति है, इसीलिए नहीं, क्योंकि यूसुफ निर्दोष और धर्मी व्यक्ति था। वो एक अपवित्र कार्य को सहन नहीं कर पाया, उसके हिसाब से ये अपवित्र कार्य था। ओके, किसी और के साथ संबंध रखते हुए उसका बच्चा हुआ रहेगा, ऐसे वो सोचकर त्यागना चाहा। तब परमेश्वर क्या किया? 20 वाक्य पढ़िए। जब वह इन बातों के बारे में सोच में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, ए यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। ओके, हे यूसुफ, तू मरियम को अपना पत्नी मानकर ले आने में मत डर। ये स्वर्ग से संदेश यूसुफ को पहुंचा, एक स्वर्गदूत के द्वारा। ओके, अपने आप को उस परिस्थिति में डालकर देखो। ओके, जस्ट इमेजिन, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टाइम। जस्ट आस्क योरसेल्फ, इफ Joseph was not righteous man, he wouldn't have heard this voice from the Lord. यदि यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति नहीं होता, वो परमेश्वर से ये संदेश नहीं सुना होता और मरियम को त्यागा होता। क्योंकि यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था और उसका परमेश्वर के साथ एक संबंध था। ओके, एक करीब रिश्ता था, इसलिए परमेश्वर का संदेश, वार्तालाप वो सुन पा रहा था। उसका कान परमेश्वर के आवाज के साथ क्या था? मिलता था। His ears were tuned to God's voice. Jesus said in the book of John that my sheep hears my voice. They recognize my voice. यीशु ने कहा, मैं सच्चा चरवा हूं, मेरा भेड़ मेरे आवाज को पहचानता है। ओके, तो हम यदि अपने आप को धर्म के मार्ग में चलेंगे, हम वचन के अनुसार चलेंगे, प्रभु के साथ एक रिश्ता रखेंगे, ओके, तो हमारे जीवन में कितना भी एक भयानक संकट आने दो, उनके आवाज को हम सुनेंगे और सही रास्ते में सही कदम लेंगे। नहीं तो हम अपने हिसाब से ऐसा एक कदम लेंगे जो
हमारे लिए हानिकारक होगा। इस सब के पीछे, इस कदम, सही कदम के पीछे मुख्य विषय हमारा प्रभु के साथ रिश्ता, ये है मुख्य विषय। ओके, our steps, the step that we take, the decisions that we take, if it has to be a righteous, a correct decision, if it has to be according to the will of God, then it can only be according to the will of God if we are in relation with God, if we are in close relation with God, if we walk a righteous life. Otherwise, we will not be taking the right decisions. We will miss the right steps. Okay? तो दूसरा सीख हम इसमें से लेते हैं कि हमें एक धर्मी जीवन जीना है। ओके? कोई भी मनुष्य के मन में न समझने वाला भी ऐसा एक विषय, अनोखा विषय भी होने दो जीवन में। जब तक हम धर्मी है, प्रभु के साथ एक करीबी रिश्ता है, ओके, हम सही मार्ग में रहेगा। ओके, वी विल बी ऑन द राइट ट्रैक। सो यूसुफ को वो संदेश सुनाई दिया सपने के द्वारा, स्वर्गदूत ने बात किया, तब जाकर यूसुफ ने मरियम को अपनाया। समाज के विरुद्ध खड़ा रहने के लिए यूसुफ तैयार हुआ, मरियम के साथ, मरियम के पक्ष में खड़ा रहने का तैयार हुआ। समाज विपरीत होगा, ओके, इस दोनों जोड़ी के, यूसुफ और मरियम के जोड़ी के विरुद्ध होगा, ओके, लेकिन यूसुफ खड़ा रहने से मरियम को एक बहुत बड़ा हिम्मत मिलेगा। ओके, उसके बाद अगला विषय क्या हो रहा है? लूका दूसरा अध्याय पहला वाक्य, लूका दूसरा अध्याय पहला वाक्य। उन दिनों में औगुस्तो कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। Brother, your voice is little low. Could you repeat? उन दिनों में औगुस्तो कैंसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। हाँ, आगे पढ़िए, पढ़ते जाओ। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विंटियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। हाँ, अंत यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने का वंश था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेथलेहम को गया। हाँ, तो यहाँ पर अनपेक्षित, ओके, अनएक्सपेक्टेड an incident is happening, okay, which is not a usual thing. Caesar is passing a decree that all should register themselves. There is a census that is being taken, okay. तो सबका क्या क्या हो रहा है वहां पे? क्या लिखा है हिंदी में? जनगणना। हाँ, जनगणना, नाम लिखाई, नाम लिखाई हो रहा है। तो नाम लिखाई उस वक्त सब अपने अपने गांव में, अपने अपने मूल जो क्षेत्र में, गांव में जाकर करना है। उस कारण यूसुफ और मरियम को जाना पड़ा, नाजरत से बेथलेहम जाना पड़ा। ओके, मैंने वो मैप तैयार नहीं रखा है, लेकिन आप अगर मौका मिले तो गूगल में जरा देख लीजिए बेथलेहम और नाजरत के बीच में का अंतर कितना है, और एक गर्भवती स्त्री को लेकर जाना कितना मुश्किल है, हम सब समझ सकते हैं। विशेष करके उस समय पर जहां पर हवाई जहाज नहीं है, ना ही उबर या ओला का टैक्सी है, कुछ नहीं। ओके, गधे के ऊपर बैठकर जाना है। ओके, तो बहुत मुश्किल है। कितना पीठ दर्द होगा, ओके, उस गर्भवती स्त्री को कितना मुश्किल होगा, हिलते हिलते जाना है। ओके, सब प्रकार का गंभीर अवस्था से जा रहे नाजरत से बेथलेहम। ओके, तो मैं आपके सामने ये मैं पेश कर रहा हूं कि जिस चीज को हम खुशखबरी बोलते हैं, ओके, वो मरियम के लिए शुरुआत से ही तकलीफ का और भयभीत होने का एक कारण था।
ओके, और पहला पड़ाव पार करने के बाद दूसरा पड़ाव तैयार है. आफ्टर ओवरकमिंग द फर्स्ट obstacle, the second obstacle is ready, okay, for them to face. This is what is happening in the birth of Jesus. Okay, पहला पड़ाव, पहला ऑब्स्टेकल क्या है? ओके, समाज क्या सोचेगा, मैं जिसके साथ मेरा मंगनी हुआ वो क्या सोचेगा. ओके, तो एक पार हो गया. यूसुफ को स्वर्गदूत ने सपने के द्वारा बात किया, उसने मरियम को अपना लिया, पत्नी जैसे अपना लिया. ओके, तो समाज को छोड़ो, एक मेरा पति तो मेरे साथ है, वो आश्वासन मरियम के पास था. ओके, फिर दूसरा समस्या सामने आ गया. जब कैसर ने नाम लिखाई का घोषणा किया तो नाजरत से बेतलेहम जाना पड़ा. ओके, ये दूसरा तकलीफ यात्रा में, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इन सब तकलीफों में दूसरा एक भविष्यवाणी पूरा हो रहा है. ओके, मत्ती का दूसरा अध्याय उसका 5वां वाक्य पढ़िए. मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 5. उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बेतलेहम में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा यूं लिखा गया है. पढ़ते जाओ 6वां वाक्य. सॉरी. ए बेतलेहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा. तुझ से एक अधिपति निकलेगा. यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी हुआ था मीका का पुस्तक 5वां अध्याय उसका 2 वाक्य में. ओके, वो भविष्यवाणी पूरा हो रहा है. ओके, सो एक के बाद एक परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है, लेकिन जैसा भविष्यवाणी पूरा हो रहा है, ओके, इस भविष्यवाणी, इस वचन के केंद्र में जो व्यक्ति है वे तकलीफ से गुजर रहे हैं. ओके, ये हमें समझना बहुत जरूरी है. हम आज आनंद मनाते हैं. ओके, हम गीत गाते हैं, यीशु पैदा हुआ. ओके, जरूर हमारे लिए आनंद का विषय है. ओके, लेकिन यूसुफ, मरियम और यीशु, उस छोटे बालक का परिस्थिति को जरा समझो. तकलीफ से, निंदा से, मुश्किलों से का सामना करना पड़ रहा है उन्हें. ओके, वचन जीवन में पूरा होने के लिए हमें तकलीफों का सामना करने के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है. ओके, तो ये दूसरा भविष्यवाणी है. अब बेतलेहम में यीशु का जन्म हो गया. जब मरियम और यूसुफ बेतलेहम पहुंचे नाम लिखाई के लिए, वहां पर यीशु का जन्म हुआ. 2 अध्याय 1 वाक्य पढ़िए. उन दिनों में लूका, यस, नो मत्ती 2 अध्याय 1 वाक्य. सॉरी. हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे. हाँ, बस. तो बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ, ये हम देखते हैं. ओके, और बेतलेहम में जहां पर यीशु का जन्म हुआ, वहां पे अवस्था क्या था? क्या अवस्था था? लूका का 2 अध्याय में आइए. लूका का 2 अध्याय कैन समवन हेल्प मी? वो वचन जो है जहां पर लिखा है कि उनको कहीं पर भी शरण लेने के लिए जगह नहीं मिला. In Matthew only. Matthew लूका 2:7. 2:7. Yes, please read. और वह अपना पहलोटा पुत्र जनी
उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। यस, तो बेथलेहेम में जब यूसुफ और मरियम पहुंचते पहुंचते मरियम का डिलीवरी का समय हो चुका था। ओके, और इतना अर्जेंट था, ओके, कि उसको एक शरण के लिए एक जगह चाहिए था। तो कहां पर जगह नहीं मिला लिखा है? सराई। व्हाट डज इट से? सराय में जगह नहीं थी। सॉरी, सराय। ओके, because there was no room for them in the inn. ओके, तो उस समय यात्रियों को रहने के लिए जगह थे, जैसे रूम मिलता था, धर्मशाला, या आज के तारीख में बोलेंगे तो होटल बोल सकते हैं, 5 स्टार होटल, या in English the word is inn, INN, inn. So we have in today's time also, holiday inn, hotel. There are many inns, okay, in Khandala, Lonavala you will see. तो यूसुफ पुरुष होने के नाते कोशिश किया, लेकिन सब भरा हुआ था। ओके, फेस्टिवल टाइम था, या लोग ऐसे जगह में पूरे कहीं पर भी शरण के लिए जगह नहीं था, तो इसीलिए कोई भी दूसरा चारा नहीं था, ऑप्शन नहीं था, इसीलिए एक बच्चे, व्हाट डू यू कॉल फॉर मेंजर इन हिंदी? चरनी। हाँ, चरनी में यीशु का जन्म हुआ। ओके, जहां पर गाय भैंस रखा जाता है, तो वहां पर यीशु का जन्म हुआ। ओके, सो हम जब हमारे घरों को जब हम डेकोरेट करते हैं, ओके, और कई बार हम अपने घरों में जो चरनी है उसका डेकोरेशन करते हैं, जहाँ पे गाय भैंस रहते हैं, उसका डेकोरेशन करते हैं, दिखने में बहुत अच्छा लगता है। लोग आकर फोटो लेते हैं, people take a pic of the stable that we make, okay, because it looks beautiful, okay, but let us remember also, it is definitely beautiful, but let us also remember it was not at all a beautiful place for Joseph and Mary. मरियम और यूसुफ के लिए हम आज जो सजा कर रखते हैं, एक चरनी को सजा कर लोगों को दिखाने के लिए जो रखते हैं, यूसुफ और मरियम के लिए वो बहुत ही एक अच्छा जगह नहीं था। ओके, या यूसुफ और मरियम के लिए बहुत ही आराम वाला एक जगह नहीं था वो। ओके, बहुत कठिन परिस्थिति में यीशु का जन्म हुआ वहां पर। ओके, तो प्राइवेसी नहीं था, मरियम को प्राइवेसी का जरूरत था, लेकिन नहीं मिला। ओके, तो जब लोग आकर आनंद उठाते हैं, फोटो लेते हैं, तभी एक मौका है हमें बोलने का, ओके, कि हमारा यीशु मरियम यूसुफ बहुत तकलीफ से गुजरकर इस जगह में जन्म लिया। ओके, तो यीशु का जन्म हमें याद दिलाता है, ओके, हमें उत्साहित करता है कि दुख उठाने के लिए तैयार रहो। ओके, आनंद हमें मनाना है जरूर, ये आनंद का विषय है, मैं और एक बार कहूंगा। ओके, उसमें कोई शक नहीं है, यीशु का जन्म हुआ ये आनंद का विषय है। ओके, लेकिन हमें इन परिस्थितियों से वचन याद दिलाता है कि जैसा यीशु मरियम और यूसुफ बहुत दुख उठाया, उनके जन्म के पहले से ही दुख उठाया। ओके, हमें दुख उठाने के लिए तैयार होना है, क्योंकि उन परिस्थितियों से परमेश्वर का वचन पूरा होता है। ओके, भविष्यवाणियां पूरा होता है हमारे जीवन में, प्रभु का महिमा होता है। ओके, और जब यीशु का जन्म हुआ बेथलेहेम में, तब पूर्व से कौन आए? मत्ती का 2 अध्याय उसका पहला वाक्य, आगे पढ़ते जाओ। पूर्व से कौन आए? यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। हाँ, कौन कौन कह रहा है ये? शुरुआत से थोड़ा पढ़ो। हेरोदेस राजा के दिनों में
जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, हाँ, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। ओके, तो पूर्व से कितने ज्योतिष आए? 1, 2 या 3? कई। हाँ, तो ये एक गलत फहमी हमारे मनों से हमें निकालना है। ओके, कई साल मेरे मन में भी ये गलत फहमी, पता नहीं कैसे, क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं। ओके, हम जो सुनते हैं हम कभी वचन में देखते नहीं है कि ये सही है कि गलत, हम जब मान लेते हैं। ओके, तो मैं बचपन से ये सुनते आ रहा हूं कि 3 ज्योतिष आए, 3 ज्योतिष आए। ओके, there were no 3 wise men. Bible doesn't say 3 wise men. Bible only says that wise men came from the east. ओके, कई ज्योतिष आए, कितने आए पता नहीं, एक से ज्यादा तो है जरूर। ओके, अब ज्योतिष आकर क्या कर रहे हैं, पढ़िए। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? यहूदियों का राजा जिनका जन्म हुआ है वो कहां पर है? ये ज्योतिष लोगों को कैसा पता चला? ओके, हम मसीह लोग ज्योतिष के पास तो नहीं जाते। ओके, लेकिन यहां पे ज्योतिष का जिक्र किया गया है। ओके, और यीशु मसीह का तो जन्म हुआ है, जो उन लोग बोल रहे हैं सच तो है। ओके, तो ज्योतिष लोगों को, जो मसीह लोग नहीं है, उनको सच्चाई कैसे पता है? ओके, तो ज्योतिष लोग कह रहे हैं कि यहूदियों का राजा जो जिनका जन्म हुआ है वो कहां पर है? ओके, कहां पर आकर ये पूछ रहे हैं ज्योतिष लोग? हेरोद राजा के पास आकर, हेरोद राजा के पास। ओके, ये पहला वाक्य जो हमने पढ़ा उसमें लिखा है हेरोद राजा। ओके, हेरोद राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। हाँ, तो यरूशलेम में राजमहल था। ओके, क्योंकि यरूशलेम राजधानी था। ओके, और यरूशलेम का राजा वहां पर है, हेरोद राजा है। उनके पास आकर, राजमहल में आकर ज्योतिष लोग पूछ रहे, यहूदियों का राजा जिनका जन्म हुआ है वो कहां पर है? ओके, यहूदियों का राजा, एक राजा को ढूंढकर कहां पर जाना चाहिए? राजमहल में ही जाना चाहिए। तो सही जगह पर आया ना ज्योतिष लोग, राजमहल में ही राजा जन्म होता है। ओके, लेकिन सही जगह नहीं था। क्यों नहीं था? आगे पढ़ते जाइए। क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। हाँ, क्योंकि हमने तारा देखकर आया है, इसीलिए। उन लोग नहीं कह रहे, लेकिन हम जब वचन पढ़ते हैं हमें समझना बहुत जरूरी है। ओके, ज्योतिष लोग या संसार के कुछ लोग जो अपने आप को धर्मी मानते हैं, ओके, हो सकता है कि उन लोग जो बोल रहे हैं वो सही होगा, लेकिन गलत जगह पर पहुंच गए। ओके, what they are saying might be true, but they have come to the wrong address. Why? Because they followed the star. These are people who do not have a personal relationship with God. Okay, but they look the sun signs, okay, the star signs. They look at the universe. They are people who trust the creation, not the creator. Okay, ये ऐसे लोग हैं जो अपने आप को धर्मी का, एक धर्मी व्यक्ति का वस्त्र डालते हैं, लेकिन धर्मी नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो सृष्टि को मानते हैं ज्यादा, सृष्टिकर्ता के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। ओके, इसीलिए गलत एड्रेस पर पहुंच गए। तारों का पूजा करते हैं, तारों का अभ्यास करते हैं। ओके, चांद का अभ्यास करते हैं। ओके, सूरज का अभ्यास करते हैं। ओके, हमारे देश में भी कई ज्योतिष लोग हैं जो हाथ देखकर भविष्य बताते हैं। ओके, अफसोस की बात है कई विश्वासी लोग भी बहुत उत्सुक रहते हैं,
अरे उसने जो बोला वो तो बहुत कुछ सही है, सही हो सकता है, ओके, लेकिन प्रभु की ओर से नहीं है। सही होगा उसका ये मतलब नहीं कि हमें विश्वास करना चाहिए, ओके। तारों पर विश्वास करते हुए, तारों का अभ्यास करके, ओके, यहूदियों का राजा पैदा हुआ ये तो उनको खबर मिला, लेकिन गलत एड्रेस पर पहुंचा, ओके। उसी समय पर, उसी बाय द वे, ये ज्योतिष लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, ओके, दे आर वाइज मैन बिकॉज दे आर वेल क्वालिफाइड, ओके, दे आर लाइक साइंटिस्ट ऑफ टुडे, ओके। लेकिन बेथलेहम नगर में ऐसे कोई गरीब लोग था जो पढ़े लिखे नहीं थे, साधारण कपड़े पहनने वाले, ओके, ज्यादा प्रतिष्ठित लोग नहीं है, जो जानवरों के साथ अपना गुजारा करते हैं, भेड़ बकरियों को चराते हैं, ओके, जिनको चरवा कहा जाता है। उन चरवा लोग, उनका सृष्टिकर्ता के साथ रिश्ता था, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध था, ओके। पढ़ा लिखा न होने के बावजूद, लोगों के या संसार के नजर में बुद्धिमान नहीं है, उन लोग मूर्ख होगा, अनपढ़ होगा, लेकिन वे लोग सही एड्रेस पर पहुंचे, ओके। लूका का 2 अध्याय उसका 8वां वाक्य पढ़िए, लूक चैप्टर 2 वर्स 8। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। हाँ, पढ़ते जाओ। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। आमीन। 12 वाक्य पढ़िए। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़ों में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। इसका तुम्हारे लिए यह पता है, ओके। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को साधारण लोगों के पास, जिनका परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध है, उनके पास भेजकर पता देता है, एड्रेस देता है। यीशु मसीह कहां पर जन्म हुआ? ये ऐसे लोग हैं, चरवा लोग, जिनको तारों का कोई ज्ञान नहीं, ओके, साइंटिस्ट नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन करेक्ट एड्रेस मिल गया उनको, आमीन। तो उनको आकर पता क्या दिया? What is the address that God gave through the angels in verse 12? तुम बालक को कैसा पाओगे? पढ़िए। कि तुम एक बालक को कपड़ों में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। चरनी में पड़ा पाओगे। हेरोद राजा के राजमहल में नहीं, जहां पर ज्योतिष लोग पहुंचे, ओके। और ज्योतिष लोग वहां पर पहुंचने के कारण, हेरोद राजा को वो खबर सुनाने के कारण, पूरे बेथलेहम में या पूरे इजराइल में बहुत गड़बड़ी मच गया, ओके। Because the wise men, they reached the wrong address, because they trusted the creation instead of the creator. There was a lot of problem in Israel. The moment Herod came to know that a king is born, they verified, okay. I don't want to read all the verses, मुझे सब वाक्य नहीं पढ़ना है, समय बहुत कम है। हेरोद राजा ने यहूदियों के शास्त्रियों को बुलाकर ये पता लगाया, क्या ये सही है? उन लोगों से पता चला, फरीसी और सदूकियों से, शास्त्रियों से पता चला कि ये खबर सही है, यहूदियों का राजा पैदा होने वाला है, ओके। तो हेरोद राजा घबरा गया, ओके। मत्ती का दूसरा अध्याय, मत्ती का 2 अध्याय उसका 3 वाक्य, जल्दी पढ़िए। हमने यह सुनकर हेरोद राजा और उनके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। हाँ, सारा यरूशलेम घबरा गया, ओके। तो घबरा कर हेरोद राजा अपना राजगद्दी संभालने के लिए, हेरोद राजा सोचा होगा कि मैं राजा होते हुए दूसरा कौन सा राजा पैदा हुआ, ओके। तो अपना
पद को संभालने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उसने एक बहुत ही गिरा हुआ एक कार्य किया, बहुत ही कठोर निर्णय लिया। ओके, जो जितने भी बालक पैदा हुए सबको मार डालने का आदेश दिया हेरोद राजा ने। ओके, ओके, तो वो वाक्य हम नहीं पढ़ेंगे। तो हेरोद राजा ने आज्ञा दिया कि सभी बालकों को मार डालने का। ओके, और जब हेरोद ने ये आज्ञा दिया सभी बालकों को मार डालने का, तब परमेश्वर का स्वर्गदूत यूसुफ को बेथलेहम में प्रकट हुआ। ओके, और प्रकट होकर क्या कहा? दूसरा अध्याय का 13 वाक्य पढ़िए, मत्ती दूसरा अध्याय उसका 13 वाक्य। और उसके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। हाँ, देखो, यूसुफ धर्मी होने के कारण, यूसुफ का परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध होने के कारण कितना खूबसूरत तरीके से परमेश्वर मार्गदर्शन कर रहा है। ओके, चारों ओर खतरा है लेकिन धर्मी जन पर कुछ आपत्ति नहीं आएगी। ओके, वो आपत्ति न आने के लिए परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध होना बहुत जरूरी है, तब हमें मार्गदर्शन मिलता है। So this is a key word that we should learn from the birth of Jesus, the story of the birth of Jesus. Okay, that have a personal relationship with God, so that God will keep guiding us in the midst of our enemies. Okay, दुश्मनों के बीच में मेज बिछाने वाला, ओके, परमेश्वर है हमारा। ओके, तो परमेश्वर यूसुफ को और मरियम को सुरक्षित रखने के लिए बेथलेहम से मिस्र देश में जाने के लिए कहा। ओके, अब देखो, और एक बार मरियम को यात्रा करना पड़ रहा है। एक तो डिलीवरी के पहले यात्रा किया, अब डिलीवरी के बाद भी, दोनों बहुत ही नाजुक समय है। एक माँ को अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है, शारीरिक कमजोरी है, लेकिन देखो कितना तकलीफ उठाकर मरियम को यात्रा करना पड़ रहा है। उस छोटे बालक को हम सब जानते हैं ना कि डॉक्टर बोलते हैं नया जन्मा हुआ बच्चे को कहीं पर भी लेकर नहीं जाना है, घर पर रखते। तो इस बच्चे को यात्रा में जाना पड़ रहा है। ओके, ही इज एक्सपोज्ड टू लॉट ऑफ एडवर्स सिचुएशंस। ओके, इन सब चीजों के बीच में परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है, तीसरा भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। 14 वाक्य पढ़िए, 15 वाक्य 15। और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। यस, परमेश्वर का ये वचन पूरा होने के लिए ओके, कि मैं अपने बालक को मिस्र से बुलाया, ये घटना हुआ कि वो मिस्र में जाना पड़ा ताकि वहां से परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा उसको बुलाया। और फिर उसके बाद मत्ती का दूसरा अध्याय उसका 16 वाक्य पढ़िए, मत्ती दूसरा अध्याय 16 वाक्य। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों के द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बेथलेहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उसमें से छोटे थे मरवा डाला। ओके, तो हेरोद ने सब बच्चों को मरवा डाला, और हेरोद के हिसाब से
हेरोद को लगता है कि अपना राजगद्दी उसने बचा दिया। जो ज्योतिषों ने आके कहा कि यहूदियों का राजा पैदा हुआ है, जो भी बच्चा है किधर भी होने दो, उसको मैंने मार डाला, ऐसा हेरोदियस को लगा होगा। ओके, लेकिन निर्दोष बालकों को मार डालने के द्वारा भी परमेश्वर का एक भविष्यवाणी पूरा हुआ, जो यिर्मयाह के पुस्तक में लिखा गया था। 17 वाक्य पढ़िए। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। क्या है वो रामा वचन? में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना न चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। जरा सोच कर देखो, इस क्रिसमस के समय पर, ओके, जो पहला क्रिसमस हुआ उस बेथलेहेम में, ओके, वहां उस समय पर हजारों घरों में निर्दोष बालक को मार डाल दिया गया। ओके, हर एक उन बालकों के मां आंसू बहा रहे थे। हम जब आज आनंद मना रहे हैं, ओके, बेथलेहेम नगर में, उस इजराइल देश में उस समय, ओके, विलाप हो रहा था, रोना हो रहा था। और यिर्मयाह के पुस्तक में लिखा हुआ भविष्यवाणी पूरा हुआ। ओके, सो व्हेन वी गो थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स, इफ वी हैव problems in our life and we are in tears, हम रोते हैं, हम दुख में है, तकलीफ में है। ओके, परमेश्वर का वचन हमें आश्वासन देता है कि उनका इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो रहा है। ओके, हम शायद पूछेंगे, प्रभु ऐसा कौन सा इच्छा है आपका कि मुझे तकलीफ में डाल के आपका वचन पूरा हो रहा है? होने दो, ये प्रभु का अद्भुत तरीका है। ओके, हमें परमेश्वर से अनुग्रह मांगना चाहिए। ओके, अय्यूब तकलीफ में होकर गुजरकर परमेश्वर का योजना पूरा हुआ, शैतान हारा अय्यूब के जीवन में और परमेश्वर का महिमा हुआ। ऐसा होने दो हमारे जीवन में भी। ओके, तो पहला क्रिसमस में ये सब हो रहा था, और हेरोद जो अपना राजगद्दी को बचाए रखा, ऐसा मूर्खता से वो सोचा, वो स्वयं मर गया। 19 वाक्य पढ़िए। हेरोदोस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इजराइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। जो बालक का प्राण लेना चाहते थे वे स्वयं मर गए। ओके, ज्योतिष लोग दूसरों को बताते हैं तेरा भविष्य ये है, तेरा भविष्य वो है, लेकिन वे स्वयं अपना भविष्य नहीं जानते। हेरोद राजा भविष्य ज्योतिषों पर विश्वास करके जिया, वो स्वयं अपना भविष्य नहीं जाना। ओके, और वो स्वयं मर गए। लेकिन यूसुफ और मरियम या हम जैसे मसीह लोग, भले हमारा भविष्य ठीक से हम नहीं जानते, लेकिन हमारा भविष्य जानने वाला परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो यूसुफ को जैसा परमेश्वर मार्गदर्शन किया और सब प्रकार के खतरे से बचाया, वही परमेश्वर हमें भी बचाएगा। ओके, द गॉड हु नोज आवर फ्यूचर, ओके, ही विल टेक केयर ऑफ अस। वी डोंट नीड टू नो एवरीथिंग। क्या होगा कल हमें जानने की जरूरत नहीं है, हमारा परमेश्वर जानता है। और वही परमेश्वर अब हेरोद मरने के बाद यूसुफ को मिस्र देश से लौट आने के लिए कहा। ओके, और फिर मरियम और यूसुफ को यात्रा करना पड़ा। ओके, कोई कैब में नहीं, टैक्सी में नहीं, फिर ये सब यात्रा बहुत कठिन यात्रा है। ओके, गधे के ऊपर बैठकर यात्रा करना पड़ रहा है या ऊंट के ऊपर बैठकर, बहुत तकलीफ है, विशेष करके मरियम को बहुत तकलीफ है। ओके, और फिर यूसुफ और मरियम लौट आया। कहां पर आए? नाजरत में आए। 22 वाक्य पढ़िए। परंतु यह सुनकर कि अर्किलाउस अपने पिता हेरोदोस की जगह पर यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश को चला गया और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था,
वह नासरी कहलाएगा। आमीन। यीशु मसीह यूसुफ को परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा सपने के द्वारा अलग अलग परिस्थिति में बात किया। और उस कारण यूसुफ यात्रा करते करते अब मिस्र देश से लौट आकर नाजरत में आकर बस गया। अब सुरक्षित है, बालक सुरक्षित है नाजरत में। और ये इसलिए हुआ ताकि भविष्यवाणी पूरा हो कि वो नाजरी कहलाएगा। आमीन। तो परमेश्वर का भविष्यवाणी पूरा होने के लिए एक के बाद एक यूसुफ, मरियम और यीशु बालक भी तकलीफ से होकर गुजरना पड़ा। ये है पहला क्रिसमस। और फिर यीशु के बारे में लिखा है लूका दूसरा अध्याय उसका 40वां वाक्य में। लूका दूसरा अध्याय 40 वाक्य। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। तो नाजरत में आकर बसा और वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह उस बालक के ऊपर था। क्या हम चाहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर रहे? क्या हम चाहते हैं कि तकलीफ और समस्याओं के बीच में परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करे? हम धर्मी रहे, परमेश्वर का भय मानकर जिए। कोई भी प्रकार का हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज, व्हाट डू यू कॉल फॉर कॉम्प्रोमाइज? समझौता। हाँ, कोई भी प्रकार का समझौता न करे हम। हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम जिए। परमेश्वर हमें सही रास्ते में मार्गदर्शन करेगा। So in this Christmas, let us always remember that the birth of Jesus is not only about the joy, the happiness, the celebration, but it is also a reminder that we should be prepared to take the pain, that we should be prepared to suffer, that we should be prepared for all kinds of accusations from the society. Let people accuse us that we are celebrating Christmas in a very traditional way, that we don't give importance to Santa Claus. Let people accuse us. लोग निंदा करने दो, लेकिन प्रभु का वचन हमारे जीवन के द्वारा पूरा होगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के पहले हम यीशु के जन्म के संबंधित एक गीत गाएंगे। बेथनी, ओवर टू यू। Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful holy nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold, he come, offspring of a virgin's womb. Mild he lay his glory by, born that man no more may die, born to raise the sons of earth, born to give them second birth. Hark the herald angels sing,
Glory to the newborn King. Hail the heaven-born Prince of Peace. Hail the Son of Righteousness. Light and life to all he brings. Risen with healing in his wings. Mild he lay his glory by. Born that man no more may die. Born to raise the sons of earth. Born to give them second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. King of heaven, come down. King of heaven, come now. Let your glory reign, shining like the day. King of heaven, come. King of heaven, rise up. Who can stand against us? You are strong to save in your mighty name. King of heaven, come. King of heaven, come down. King of heaven, come now. Let your glory reign, shining like the day. King of heaven, come. King of heaven, rise up. Who can stand against us? You are strong to save in your mighty name. King of heaven, come. Christ by heaven, heaven adore. Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offspring of a virgin's womb. Mild he lay his glory by, born that man no more may die, born to raise the sons of earth, born to give them second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. थैंक यू बेथनी। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, अपने आप को समर्पण करेंगे और ये भी प्रार्थना करेंगे कि इस क्रिसमस के समय पर यीशु के जन्म के संबंधित लोगों के मन की आंखें खुल जाए, कि लोग यीशु को स्वीकारें और यीशु में आनंदित हो और सभी का उद्धार हो, ऐसा हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब आंख बंद करें। जानकी सिस्टर, आप प्रार्थना कर सकते हो। प्रार्थना करिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, प्रभुजी તમારો આભાર માની છે, તમારી સ્તુતિ અને પ્રશંસા કરીએ છીએ પિતા। પ્રભુજી તમે આ સુંદર અમે દિવસ બતાવ્યો છે, તમારો જન્મ દિવસની ઉજવણી અમે કરી રહ્યા છે પ્રભુજી, અમે આનંદ માણી રહ્યા છે પ્રભુજી, એના માટે તમારો આભાર માને છે, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ પ્રભુજી। પ્રભુજી આ સુંદર તમારા વચનોના માટે પણ તમારો આભાર માને છે, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ પ્રભુજી। ખરેખર પ્રભુજી તમે કુંવારી મરિયમના દ્વારા પ્રભુ તમે ગર્ભ ધારણ કર્યો પ્રભુજી, અને પ્રભુ તમે પવિત્ર આત્મા દ્વારા પ્રભુજી આ પૃથ્વી પર આવ્યા પ્રભુ, અને તમે નિષ્કલંક છો પ્રભુ, તમે નિષ્પાપી છો પ્રભુ, પણ પ્રભુજી અમે અમારા પાપોને પ્રભુજી તમે તમારા માથે લઈ લીધા પ્રભુજી, અને પ્રભુજી તમે કેટલું બધું સહન કર્યું પ્રભુજી મુજ પાપીના માટે પ્રભુ। પ્રભુ અમને ક્ષમા કરો પ્રભુજી, અમે તમારા વચનો દ્વારા અમે ચાલતા નથી પ્રભુ, અમને માફ કરજો પ્રભુજી, તમારા વચનો દ્વારા અમે ચાલીએ, તમારી ઈચ્છાને સમજવાને માટે અમને મદદ કરો, કૃપા કરો, દયા કરો પ્રભુજી। પ્રભુ જે દુઃખ તમે સહન કર્યું છે પ્રભુજી, એ દુઃખ અમારે સહન કરવાનું હતું પ્રભુ, પણ તમે સહન કર્યું પૃથ્વી પર પ્રભુ, તમે રાજા થઈને પ્રભુજી આવ્યા, પણ પ્રભુજી ખરેખર પ્રભુ નિર્ધન થઈને પ્રભુજી તમે આ પૃથ્વી પર અમારા માટે સગળું કાંઈ સહન કર્યું પ્રભુજી, અને પ્રભુજી તમે મુજ પાપીને ઉદ્ધાર કરવાને માટે પ્રભુજી તમે
ફરીને પાછા પ્રભુ અમારા માટે તમે આ પૃથ્વી પર આવનાર છો પ્રભુ. પ્રભુજી અમે તમારો આવવાનો સમયને અમે રાહ જોઈએ પ્રભુજી, અને તમારી સાથે ચાલવાને માટે અમે નિરંતર તૈયાર રહીએ પ્રભુ. એ માટે પ્રભુ તમે અમને સહાય કરજો, મદદ કરજો પ્રભુજી. કઈ પણ જાતની દુઃખ કઠિનાઈ આવે પણ પ્રભુજી અમે હતાશ ન થઈએ, નિરાશ ન થઈએ, કેમ કે પ્રભુ તમે અમારી સાથે છો પ્રભુ. અમે તમારો અનુભવ કરીએ છીએ પ્રભુજી. અમે સગળા સમયમાં પ્રભુજી તમે અમારી સહાય અને મદદ કરો છો, સાથે ને પાસે રહો છો પ્રભુ. એના માટે અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ પ્રભુજી. અમે તમારા બાળકો તરીકે પ્રભુજી આ જગતમાં જુદા તરી આવે, સાચા ખ્રિસ્તી બાળકો તરીકે ઓળખાય એ માટે પ્રભુ તમે અમને સહાય અને મદદ કરો. તમારું માર્ગદર્શન તમે અમને આપો પ્રભુ, જેથી કરીને પ્રભુજી અમારા દ્વારા પ્રભુજી તમને માન તથા મહિમા મળે પ્રભુજી. લોકો તમને જાણી શકે પ્રભુજી, એવું સારું જીવન જીવનારા બાળકો અમે બની શકીએ. એ માટે પ્રભુ તમે આમ સર્વને દોરો અને ચલાવો તમારા પવિત્ર આત્મા દ્વારા પ્રભુજી. તમે અમને માર્ગદર્શન આપો પ્રભુ, અમને શુદ્ધ અને પવિત્ર કરો પ્રભુજી. અને પ્રભુજી અમે તમારી સાથે ચાલી શકીએ અને તમારા રાજ્યને માન તથા મહિમા આપી શકે. તમારા રાજ્યમાં અનેક લોકોને લાવનારા બાળકો બની શકે, નાશમાં જનારા લોકોનો પ્રભુજી અમે તમારી ગમ લાવી શકીએ. એ માટે તમે અમારો ઉપયોગ કરજો. અને પ્રભુજી જ્યારે પણ અમને તક મળે પ્રભુજી, જે સમયે પ્રભુજી અમારે તમારો સ્વાર્થ આપવાની તક મળે પ્રભુજી, એ સમયને અમે પ્રભુજી ઉપયોગ કરીએ પ્રભુજી. અને નિત્ય પ્રભુજી અમે તમારા સાથે તમારા સાથ સંગતનો અનુભવ કરીને પ્રભુજી અમે લોકોને પ્રભુજી તમારો સ્વાર્થ આપી શકીએ. એ માટે પ્રભુ તમે અમને ઉપયોગ કરજો, અમને લાયક બનાવજો પ્રભુજી. અને તમારી યોજના પરિપૂર્ણ કરવાને માટે પ્રભુ તમે અમને સહાયના મદદ કરજો પ્રભુ. અમારો ઉપયોગ કરજો, લાયક બનાવજો પિતા. એવી ખાસ પ્રાર્થના વિનંતી કરે છે પિતા. પ્રભુજી હવે પછીના સુંદર સમયને તમારા હાથોમાં સોંપીએ છે પ્રભુ. તમારા સુંદર વચનોના માટે તમારો પુષ્કળ આભાર માને છે, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ પ્રભુજી. તો હવે પછીના સમય તમારા હાથમાં સોંપતા પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુના નામમાં માંગે છે પિતા. સાંભળી स्वीकार करजो बाप, आमीन आमीन। पिता परमेश्वर, हम यश के लिए प्रार्थना करते हैं। यश को आपने और एक साल संभाल कर रखा। ये नया साल देखने के लिए आपने उसको जीवित रखा, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। हर एक उतार और चढ़ाव में, उसके पढ़ाई लिखाई में, एग्जाम में आपने मदद किया, उसको बुद्धि दिया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। आपके भय में वो और भी आगे बढ़ते जाए परमेश्वर, ऐसा हम सब मिलकर एक मन होके यश के लिए प्रार्थना करते प्रभु। आने वाले दिनों में, आने वाले साल वो आपके वचन के द्वारा बुद्धिमान और भी बुद्धिमान बने प्रभु, और पढ़ाई में और भी अव्वल बने प्रभु। मे ही एक्सेल इन स्टडीज वी प्रे फादर। और उसके दोस्तों के बीच में एक गवाही आप उसको बना प्रभु, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम यश को आशीषित करते। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू। यश बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। यश है क्या? थैंक यू अंकल। ओके, Happy birthday, Yash. God bless you. थैंक यू। हैप्पी बर्थडे यस। थैंक यू। हो गया 23rd को हो गया। सबके लिए सबको एक प्रेयर रिक्वेस्ट है। अंजलि की मम्मी हॉस्पिटल में एडमिटेड है, उनका शुगर लेवल बहुत हाई हो गया, तो कल शाम को एडमिट किया है, तो प्लीज कीप हर इन प्रेयर। इट्स अ प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन। और ट्यूसडे को सभी गवाही देंगे, ऐसा सबको उत्साहित करना चाहता हूँ। प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, God bless you all. Okay, bye bye. Bye. God bless you.